Hello, good afternoon students. I am Dr. Sonia Tiwari from the Department of Community Medicine, Arvindo Medical College, Indore. Today we will cover the last part of the chapter, that is the healthcare delivery system. It's not part 2, it's actually part 3. Two parts we have already seen, what was the healthcare delivery system, what was the PSC and many other topics. Now in this last part we will see the IPHS standard for the subcenter, the PSC and the CSC. And I am sorry that this video does not have a lot of animations, a lot of music and lot of pictures, as I was out of Indore due to some urgent reason. And so in order to cover my class, I have made a very simple video for you. So without any delay, we will start the class. First is the subcenter, the functions, the staffing patterns of assistants, the roles and the responsibilities. Now subcenter is the most peripheral and the first contact point between the primary healthcare system and the community. Now if you talk about the population, we have 5,000 population in the plain and 3,000 population in the hilly and the desert area. Then objectives of subcenter according to the IPHS standard. If you see, why were these IPHS standard made for the subcenter? So first is that basic primary healthcare to the community. Then you have to achieve and maintain an acceptable standard of quality of care. You have to make the services more comprehensive and more responsive and sensitive to the needs of the community. These were the three objectives. Now what were the services to be provided in the subcenter? We have MCS services, that is the antenatal care, intranatal care, postnatal care, child health, family planning and contraception. You have counseling and regarding the safe abortion services. Then you have adolescent health care. You can give assistance regarding the school healthcare services. You can help in control of locally endemic diseases such as the malaria, Kala Azar, Japanese encephalitis, filariasis, dengue, etc. and the control of the epidemics. You can help them regarding disease surveillance. If any disease is prevalent in the society, notification and reporting can be done at the subcenter level. You can always help in the water quality monitoring, then promotion of sanitation, including the use of toilets and appropriate garbage disposal. Then you can give field visits and certain help can be provided. Then community need assessment can be there, curative services can be there, training, coordination and monitoring, record of the vital events can be there. And lastly, the recording, maintenance and reporting of all the data can be always be there. Then coming to the next slide, which shows about the staffing pattern. As in the last video also we have covered about the staffing pattern of the PSC. If you remember, we have seen 15 people were there. In the subcenter, people of 3, staff of 3 was there. So currently the subcenter is a staff by one female health worker is there, who is known as the ANM, that is auxiliary nurse midwife, and one male health worker is there who is the multi-purpose worker. Then there is ASHA, that is accredited social health activist. The general norm is 1 ASHA per 1,000 population. If you talk about the physical infrastructure, it has its own building with central location with easy access to the population. Functions of the community health nurse or the worker. They help in administration work, in the communication work, in the nursing, teaching and in research work. Then pattern of assistance. If we see at the subcenter level, what is the pattern of assistance which is followed? So first is that rupees 700 as assistance to the expectant mothers or the pregnant mothers, and rupees 600 for ASHA, that is accredited social health activist, other equivalent worker with institutional delivery in the rural area. Rupees 600 as assistance to the expectant mothers and rupees 200 for ASHA in the urban areas. So it's clear, I think. For antenatal mothers, institutional delivery, if you see, the assistance of 700 and to the ASHA 600. And if you see in the
Urban area, the assistance to the expectant mother is 600 and 200 is for ASHA, and it is the duty of the ANM, ASHA, Anganwadi worker to make the payment to the expectant mother, and that is on time, which is very important. Then we come to the PSC, right? I think the IPHS standard for the sub center are very clear, that they have their own infrastructure, then what are the services provided, population of 3000 and 5000 they have to cover, and various other functions of the sub center according to the IPHS standard. Now coming to the PSC, set of uniform standards to improve the quality of care delivery in our country. Draft IPHS, that is Indian Public Health Standard, was first developed in 2005, revised subsequently. They have been revised last in 2012. Now why were the objectives for PSC, why the IPHS standards were made? So first is to provide optimum care to the community, to achieve and maintain an acceptable standards of quality care, and lastly to make the services more responsive and sensitive to the needs of the community. Now why these standards were made? Again and again we are saying that IPHS standards, that is Indian Public Health Standards, right? So now why these standards were made? So first is for the functioning of rural healthcare institutions, they were not satisfactory. Then the healthcare system in India, it was expanded considerably over the last few decades. However, the quality of services not uniform, right? Last, that is lack of comprehensive and realistic mandatory standards for public health institutions in the Indian context. So these were the three reasons that the standards were made. First, the services were not satisfactory. Second, the quality of service, and third is the lack of comprehensive and realistic services, right? Then services under the IPHS. In the PSC, two types of services were provided. One was the essential and second was the desirable. Essential, that is the minimum assured service which has to be there, right? Without that you can't do or you can't help anyone. Then second was the desirable, that is they should be aspired to achieve, right? So these are the two services which are provided under the IPHS standard for the PSC. Then depending upon the delivery of case load, if you talk about the PSC is divided into two, type A PSC, type B PSC. Type A PSC less than 20 deliveries per month, and type 2 or type B PSC, that is more than equal to 20 deliveries per month. Then staffing pattern we have already discussed in our last class, that is approximately 15 people were working in the PSC. But here according to the IPHS standard, the staff are the same, that is the medical officer, MBBS, Ayush, accountant, pharmacist Ayush, then nurse midwife or the staff nurse, then health worker male and female, lady health visitor LHV, health educator, lab technician, cold chain and the vaccine logistic assistant, multi-skilled group D worker, then sanitary worker, right, watchman. So approximately the staff is same, but according to that delivery load which I have said, two types of PSC, type A and type B. So they say that type A have 13 people and type B have 14 people. So this varies little bit according to different states and different places. Then infrastructure, if you talk about infrastructure, तो सबका होगा, एक बिल्डिंग होगी और वहाँ पे कौन कौन से वर्क किए जाते हैं, कौन कौन से रूम्स नेसेसरी हैं, ये तीनों जगह होगा. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द पीएससी की भी खुद की बिल्डिंग होगी और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होगी ये देख लेते हैं. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वार्ड होंगे 4 से 6, लेबर रूम होगा, वेटिंग एरिया होगा, माइनर ओटी और ड्रेसिंग एरिया होगा, लैब, स्टोर रूम, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आयुष, कोल्ड चेन, जनरेटर रूम, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, फिर एक काउंसलिंग रूम होगा, न्यूबॉर्न केयर होगा. क्यों? क्योंकि पीएससी में हम नॉर्मल डिलीवरी भी कराते हैं और छोटे मोटे ऑपरेशन भी होते हैं. फिर वेस्ट डिस्पोजल पिट होगा, डर्टी यूटिलिटी रूम फॉर डर्टी लिनन एंड यूज्ड लिनन. ठीक है. अब फंक्शंस क्या क्या होंगे,
तो फंक्शंस, बेसिक फंक्शन जो सब सेंटर में थे, प्लस उसके साथ छोटे मोटे ऑपरेशन, इमरजेंसी केयर, नॉर्मल लेबर और ओपीडी सर्विसेज, ठीक है, ये होगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बाइट्स और ये सब आते हैं ना, उसका मैनेजमेंट। थोड़ा सा सब सेंटर को और ऊपर बढ़ा दो तो वो हो गया पीएससी। अब इसमें देखते हैं क्या फंक्शंस दिए हैं। पहला है मेडिकल केयर, दूसरा है ओपीडी सर्विसेज, टोटल 6 आवर्स ओपीडी, 4 आवर्स मॉर्निंग में चलेगी, 2 घंटे इवनिंग में चलेगी फॉर 6 डेज इन अ वीक। फिर इमरजेंसी सर्विसेज की बात करेंगे तो 24/7 रहेंगी। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होगा इंजरीज़ का, एक्सीडेंट्स का, स्टेबलाइजेशन बिफोर रेफरल, डॉग बाइट, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट एक्सेट्रा। फिर रेफरल सर्विसेज और इन पेशेंट डिपार्टमेंट रहेगा तो 6 बेड करीब होने चाहिए। फिर एंटीनेटल केयर तो पूरे 12 महीने मिलेगी। इंट्रानेटल केयर 24 आवर सर्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी भी होगी वहाँ पे। असिस्टेड डिलीवरीज होंगी। मैनेजमेंट ऑफ PIH, मैनेजमेंट लेबर यूजिंग पार्टोग्राफ भी वहाँ पे होगा। बेबी के पैदा होने के बाद पोस्टनेटल केयर होगी, न्यूबॉर्न केयर होगी, केयर ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द IMNCI गाइडलाइंस। अदर सर्विसेज की बात करेंगे तो MTP सर्विसेज दी जाएगी। हेल्थ एजुकेशन दिया जाएगा फॉर द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन एंड द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। आपको पता ही होगा और किसी क्लास में शायद कवर भी हुआ होगा, what is the syndromic approach for STD according to the different types of diseases which come under the STD. Different types, color, according to the color coding, different types of kits are provided to treat them, ठीक है। इसको STI क्लिनिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वहीं PSC में एक रूम होगा इसके मैनेजमेंट के लिए। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल सर्विसेज की, तो डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट होगा माल न्यूट्रिशन का, सबको पता है, अकॉर्डिंग टू द वही यूनिसेफ WHO गाइडलाइंस, ठीक है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेंगे बच्चों की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शाकिर्स टेप, ठीक है, जो कि ट्राई कलर टेप होता है। उसमें यदि रेड जोन में बच्चा आ रहा है तो वो मालनरिश है, या सर्कमफ्रेंस लेस देन 10.5 सेंटीमीटर मिल रही है, MU मिड अपर आर्म, ठीक है, इसलिए उस टेप को MUAC टेप भी कहते हैं। तब उस बच्चे को NRC के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, दैट इज़ न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। फिर स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पीरियोडिक हेल्थ चेकअप करके, बेसिक मेडिसिन देके, इम्यूनाइजेशन और डीवर्मिंग देके, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज, एडोलेसेंट हेल्थ केयर, एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक्स, प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बहुत सारे आते हैं, तो वो कुछ सब सेंटर के पास हैं, कुछ PSC रन करेगा, कुछ CSC के लेवल पे होंगे। प्रोग्राम्स हर जगह याद रखना है, ट्रेनिंग्स दी जाएंगी हर जगह, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन याद रखना है। सर्जरीज़ की बात करेंगे तो हमने बात पहले ही कर ली है कि नॉर्मल लेबर तो ठीक है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, MTP, हाइड्रोलॉक्टोमी एंड कैटरेक्ट सर्जरीज, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द आयुष, फंक्शनल लिंकेजेस विद द सब सेंटर। फिर लैब सर्विसेज क्या क्या होंगी PSC में, जैसे सब सेंटर में सिर्फ नॉर्मल रूटीन के टेस्ट होते हैं, ब्लड और यूरिन के, है ना, तो PSC में थोड़े से और ज़्यादा होंगे, जैसे कि रूटीन यूरिन, स्टूल एंड ब्लड टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ द RTI STD, स्प्यूटम टेस्टिंग होगा ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ब्लड स्मीयर होगा मलेरियल पैरासाइट के लिए, रैपिड टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी होगा, RPR फॉर सिफिलिस सर्वेलेंस, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड एंड मलेरिया, रैपिड टेस्ट किट फॉर फीकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, एस्टिमेशन ऑफ द क्लोरीन लेवल इन द वाटर, वही ऑर्थोटोल्यूडिन टेस्ट से, ठीक है। तो एक ज़रा सा ये बताया गया है क्या क्या है, डायग्राम में PSC रहता है, रेफरल सर्विस रहती है, ठीक है। तो रेफरल से आप सेकेंडरी रेफरल हॉस्पिटल में जा सकते हैं, NGO यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, DH होता है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और फिर कुछ नहीं है तो प्राइवेट क्लिनिक्स, ठीक है। एक पिक्चर दिया था। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ द CSC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। द सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर essentially includes community health centers constituting the first referral unit and the district hospital, ठीक है। सब सेंटर में बेसिक सर्विसेज, PSC में आपका थोड़ा और सब सेंटर की सर्विसेज प्लस लैब सर्विसेज और वेरियस टाइप के जो क्लिनिक्स की बात की हमने, जैसे माल न्यूट्रिशन, STD, फिर हमने कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस की बात की, ठीक है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, नॉर्मल लेबर, ठीक है, ये सब भी ठीक है। अब पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेज PSC पे भी नहीं हो रही हैं,
तो पहली जगह जहाँ पे हम उसको रिफ़र करेंगे वो कहलाएगा फर्स्ट रेफरल यूनिट या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो आपको यदि लास्ट लेक्चर याद होगा तो बिल्कुल याद होगा कि सब सेंटर पॉपुलेशन तो 3000 से 5000 है, ठीक है। पीएससी की पॉपुलेशन हो गई 20,000 to 30,000 और सीएससी की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 80,000 इन द ट्राइबल एंड हिली और 1,20,000 पॉपुलेशन इन द प्लेन एरिया। और एक खास बात जो बताई गई थी, सीएससी के लिए सब सेंटर की सर्विस तो मिलेगी, पीएससी की भी मिलेगी और हायर सर्विसेज मिलेगी। तो याद रखने के लिए क्या बताया था कि फाइनल ईयर के चारों सब्जेक्ट्स और जितनी सर्विसेज हमारे मेडिकल कॉलेज में वो सब एक सीएससी में होगा। तो फाइनल ईयर के चारों सब्जेक्ट्स हो गए मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑप्स गायनी, ये 4 के सारे ऑपरेशंस होंगे सीएससी में। प्लस जैसे अपने यहाँ पे कॉलेज में क्या क्या है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एक सेक्टर अलग से हो गया, ठीक है। बाकी लैब में भी सारे टेस्ट वगैरह होंगे। तो ये एक पूरा एक ही लाइन में नट शेल में आपको सीएससी के बारे में बताया कि वहाँ पे सर्विसेज क्या क्या होंगी, ठीक है। अब हम इससे देख लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। The secondary level of healthcare essentially includes the community health center constituting the first referral unit, that is the FRUs। फ्रूज पे भी शॉर्ट नोट आता है, तो ये आरसीएच वाले प्रोग्राम में भी दिया है आपको और यहाँ से भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं और ये एफआरयू के नाम से ही आएगा, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा होगा। District Health Hospitals. The CSCs were designed to provide referral health care for cases from the primary level and for cases in need of specialist care approaching the center directly. 4 PSCs are included under each CSC। एक CSC रहेगा, उसके अंदर 4 PSC आते हैं। पॉपुलेशन हमने देख ही लिया, 80,000 इन द ट्राइबल एरिया, 1,20,000 इन द प्लेन एरिया। इट्स अ 30 बेड। PSC में 6 बेड थे, सब सेंटर में बेसिकली बेड तो थे ही नहीं, सारी OPD सर्विसेज थी, ठीक है, हैंड टू हैंड डे केयर टाइप्स, ठीक है। और सीएससी की बात करेंगे तो यहाँ 30 बेड है, प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट केयर इन द मेडिसिन, ऑब्स्टेटिक, गायनिक, सर्जरी एंड पीडिया। ये क्या हो गया फाइनल ईयर के 4 सब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IPHS फॉर द CSC? टू प्रोवाइड ऑप्टिमल एक्सपर्ट केयर टू द कम्युनिटी, फिर अचीव एंड मेंटेन एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर, टू मेक द सर्विसेज मोर रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी। सर्विसेज क्या क्या थी? केयर ऑफ रूटीन एंड इमरजेंसी केसेस इन द सर्जरी, मेडिसिन, 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज इंक्लूडिंग द नॉर्मल एंड असिस्टेड डिलीवरीज, फिर असेंशियल एंड इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर, EMOC जो पढ़ते हैं RCH में, तो वो CSC का ही पार्ट है, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर। फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विस इंक्लूडिंग द लेप्रोस्कोपिक सर्विसेज, safe abortion services, newborn care, routine and emergency care of the sick children, other management including nasal packing, tracheostomy, foreign body removal, etc. और सारे प्रोग्राम्स तीनों जगह ही आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब सीएससी की भी खुद की बिल्डिंग होगी, अब पर उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या पार्ट्स होंगे वो देख लेते हैं। द सीएससी शुड हैव 30 इंडोर बेड्स विथ 1 ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, एक्सरे फैसिलिटी एंड लैब फैसिलिटी, प्रोमिनेंट डिस्प्ले बोर्ड्स इन लोकल लैंग्वेज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्विसेज अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। लिखा रहता है ना टाइम, कब से कब तक OPD रहेगी, ठीक है, और किस किस दिन कौन कौन डॉक्टर्स आएंगे, ये सब बोर्ड पे इंफॉर्मेशन रहेगी और कहाँ कहाँ कौन सा रूम बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन काउंटर रहेगा घुसते से, एक फार्मेसी रहेगी, क्लीन पब्लिक यूटिलिटीज़ रहेंगे सेपरेट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, सजेशन और कंप्लेन बॉक्स हमेशा होगा, हमारे कॉलेज में भी है तो CSC में भी होगा, ठीक है। फिर क्लिनिक्स फॉर वेरियस मेडिकल डिसिप्लिन्स, जैसे कि STD क्लिनिक बताया तुमको, NRC बताया माल न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, फैमिली वेलफेयर क्लिनिक हो गया। फिर ट्रीटमेंट रूम होंगे, माइनर OT, इंजेक्शन रूम, ड्रेसिंग रूम, वार्ड सेपरेट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, अपने कॉलेज में भी सेपरेट है। नर्सिंग स्टेशन होता है हर वार्ड में, और स्टरलाइजेशन विथ स्टेराइल स्टोरेज एंड द लॉन्ड्री। फिर ये इन्होंने बताया है कि मैन पावर कैसे कैसे होगा एक CSC में, ठीक है। तो ये बताया है कि नर्स मिडवाइफ है, ठीक है, ड्रेसर रहेगा एक,
फिर एक फार्मासिस्ट ऑब्लिक कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियन एक, रेडियोग्राफर एक, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट लगेगा एक, वार्ड बॉय 2, स्वीपर 3, ठीक है, चौकीदार, ओपीडी अटेंडेंट, फिर स्टैटिस्टिकल वही डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओटी अटेंडेंट, रजिस्ट्रेशन क्लर्क, ये सब मिला के 5 लोग। तो 21 से 22 लोग रहेंगे, +2 हो सकते हैं, कहीं दूसरी जगह वेरी करेगा। तो सब सेंटर में 3 ही लोग थे। पीएससी की बात करेंगे तो 13 से 14 लोग रहेंगे, ठीक है। और सीएससी की बात करेंगे तो क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहे हैं तो 21 से 22 का स्टाफ लगेगा। So thank you for your patience listening and you are always welcome with the question। अब ये हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम वाला चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम में हमने देखा कि आपके 4 चीज़ें थी, 4 लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। एक तो था आपका विलेज लेवल, जिसमें आता था विलेज हेल्थ गाइड और आशा, फिर एक होती थी दाई और एक होते थे एएनएम, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आता था पीएससी। पीएससी में पॉपुलेशन की भी बात कर ली थी, 20,000 से 30,000। पीएससी के 4 प्रिंसिपल होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं और उसकी एक डेफिनेशन होती है, तो ये हमेशा याद रखना है। फिर तीसरे नंबर पे आता था आपका ये लास्ट नंबर पे आता था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। सो विलेज हेल्थ गाइड, सब सेंटर, पीएससी एंड द सीएससी। शायद मैंने इसके पहले वाली लाइन में सब सेंटर मिस कर दिया था, तो इट डजेंट मैटर अलॉट, ठीक है। फिर ये हो गया हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। फिर वेरियस वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज जो चल रही हैं और क्या काम कर रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। और एक स्टार्टिंग में हमने देखा था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। So MCQs of this I would like to give you later in another class। वैसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के जो MCQs जितने भी थे वो लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं, ठीक है। सो IPHS स्टैंडर्ड, प्लीज़ रीड इट एंड प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर, क्योंकि एक ना एक बार शॉर्ट नोट आया है और लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी IPHS स्टैंडर्ड दिया है। पहले ये पहले ये पीजी क्वेश्चन था, अब ये यूजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।